Good morning, students. So let's do some pep talk. No, let's not do some pep talk. We'll be doing some pep talk randomly tomorrow. As in पूरे week में continuous पढ़ाई, continuous questions. It is kind of sound boring. Though I did not ask you, by the way, what's going in your school. So please do write in the comment section as in what exactly is the school doing, so that we can come to know कि वो लोग क्या करवा रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं. So please let me know in the comment section, so at least मालूम पड़ जाता है कि वो कौन सा वाला मैथ्स का चैप्टर करा रहे हैं, हिस्ट्री में क्या करवा रहे हैं, साइंस में क्या करवा रहे हैं, and so on and so forth. So whatever you can feel like, please do write, so that at least I can come to know that what actually should be our strategy according to the part of schools. But since this video is common and open for all, so let's not go into the part of schools right now, because I'm hearing various kind of rumors and nothing is confirmed. I heard some of the schools will be opening later in the month of August, in the month of July, God knows when, God knows what. As of now, let's start directly without wasting time. Why? Because my aim is very simple, guys. By the time the school guys opens up, आपके कुछ टॉपिक्स, एटलीस्ट अराउंड 5 टॉपिक्स और 4 टॉपिक्स, जब भी स्कूल्स रेगुलरली ओपन होंगे, आपके 5 चैप्टर्स इन सोशल, 5 चैप्टर्स इन मैथ्स एंड 5 चैप्टर्स इन द साइंस should be just completely done. Okay, now let's start. So today what we are going to take the topic is a physics topic in science. So let's write the term as physics, and of course the name of the topic is current electricity. Current electricity. आज आपके बहुत सारे माइथ्स क्लियर हो जाएंगे. जो माइथ्स मतलब जो आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, एंड पता नहीं कौन ये चीज़ें फैलाता है, गॉड नोज, बट मुझे जितना मालूम है, आई एम श्योर अबाउट इट 100%. सो हैव ट्रस्ट. ओके, सो now without wasting time, let's start with the topic of physics, current electricity. If somebody who has just joined new, all together the same speech, guys, go to the playlist, see all the sections of class 10 CBSE videos, and you should be able to do fine. हम लोगों ने अभी तक एक केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म किया है, which is known as, I don't know, what is that? Of course, yes, that is metals and non-metals. Okay. अब हम बात करेंगे, हमें अभी तक ये मालूम है कि मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स बाय द वे उसमें आयोनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, कोवेलेंट पढ़े थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू टॉक समथिंग इन फिजिक्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, you need to understand what do you mean by physics. Physics is that particular branch of science which deals with experiment, something which is physical, physically can be verified, it can be seen, it can be touched. हवा में बात नहीं करते हैं, जो होता है उसी की बात करते हैं, फिजिक्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्ड, करंट. सॉरी, बट नॉर्मली जब शॉक लगता है तो ऐसा ही होता है, झटका, करंट. आई जस्ट टच्ड इट और उसके पहले ही झटका लग गया. एनीवे, सो व्हाट इज करंट? सॉरी गाइस, व्हाट इज करंट? नाउ करंट इज नथिंग एल्स बट इज करंट. बट देन व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? Electricity is also current. Pehla myth. Current is not electricity. Electricity is not current. Both are two different terms. Let's first of all understand the first definition and the first word known as current. Believe me guys, some of the engineers, even some of the very literate students, even after clearing class 12th, even they don't know what is current and what is the difference between current and the potential or the. आप जब भी कभी किसी से पूछोगे तो आप उनसे पूछना, अच्छा बताओ करंट में और वोल्टेज में डिफरेंस क्या है. बोलेंगे क्या पागलपना पूछ रहे हैं, करंट होता है, वोल्टेज होता है. मतलब करंट का मतलब करंट, और जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज आता है. करंट में क्या है, वही होता है, सेम ही होता है. जहां भी किसी ने बोल दिया कि करंट एंड पोटेंशियल इज सेम, बस कुछ मत बोलना, जस्ट पास ऑन अ स्माइल एंड से थैंक यू सो मच. नाउ what do you mean by the word current? Now current is nothing else but is the flow of charges. So let's write flow of charges. Flow of charges in one direction. Flow of charges in one direction
because of applied electrical field or because of potential, but as of now we will not go into this. So what is current? Current can be defined as flow of charges in one direction per unit time. Per unit time. Now what do you mean by sir flow of charges in one direction per unit time? अब इसका मतलब क्या है? आपको मालूम है दो तरह के चार्जेस होते हैं. वन इज नोन एज अ पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नोन एज अ नेगेटिव चार्ज. आपने क्लास 9th में ये भी पढ़ा था दैट एटम के अंदर जो सेंट्रल गुठली टाइप की होती है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, और वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, जो रदरफोर्ड अंकल हमें बता के गए थे. नाउ यू सिंपली नीड टू अंडरस्टैंड दैट चार्जेस मतलब वो जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटसाइड में घूम रहे हैं उसके सराउंड कर रहे हैं उसको एज अ क्लाउड फॉर्मेशन में, दे विल बी नोन एज द नेगेटिवली चार्ज्ड. इन्होंने आपकी डेफिनेशन में क्या बोला हुआ है? करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम. करंट कैन बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम. सर अब ये आई क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन. नाउ ओवर हियर आई रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक करंट. I'll come on to the part of electric. Don't worry, I haven't forgotten. Electric current. What is Q? Q will be known as the charge. Sir, can this charge be positive? Of course, yes, it can be positive. Can this charge be negative? Of course, yes, it can be negative too. So, charge T is known as time. Now, electric current की जो standard unit होती है, which is a fundamental unit in class 11th आप पढ़ोगे, that will be known as ampere. चार्ज की जो फंडामेंटल यूनिट होती है दैट इज नोन एज कूलम्ब. टाइम की जो यूनिट होती है दैट इज नोन एज सेकेंड. सो यहां पर लिख भी देता हूं. सो इट इज एम्पियर, कूलम्ब एंड सेकेंड. कूलम्ब इज नेम आफ्टर द साइंटिस्ट कूलम्ब, जिन्होंने कूलम्ब्स लॉ बनाया था, विच वाज अ फंडामेंटल लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड आगे वाले चैप्टर्स के लिए. बट खैर, एज ऑफ नाउ आई शुड बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. तो करंट का मतलब क्या हुआ इन सिंपल वर्ड्स में? किसी लेबर ने आके पूछा करंट का मतलब क्या है? बहुत सारे चार्जेस कितने टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दैट इज नोन एज करंट. सर करंट ज्यादा हुआ का मतलब? यदि करंट ज्यादा हुआ इसका मतलब ज्यादा चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. यदि करंट कम हुआ तो कम चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है, यदि आपके पास में सेम उतने ही चार्जेस लेकिन ज्यादा टाइम में फ्लो कर रहे हैं मतलब कम करंट. सेम उतने ही चार्जेस कम टाइम में फ्लो कर रहे हैं, ज्यादा करंट. सर करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट एम्पियर, एंड इट्स शोन बाय द सिंबल A. ओके, सो आज के बाद में जब भी आप कभी बोलोगे एम्पियर, सो रिमेंबर दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट वोल्टेज, दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. आपके जितने भी घर में फ्यूज या एमसीबीज लगते हैं, कोडिंग बाय एमसीबीज आपको भी मालूम पड़ जाएगा, नॉट टुडे इन टुडेज लेक्चर बट इन द नेक्स्ट. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एम्पियर? उनमें आप देखोगे एमसीबीज के अंदर उसमें रेटिंग दी होती है, विच इज नोन एज 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आज आपको समझ में आएगा कि इनका मतलब क्या होता है बेसिक. ओके, सो फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाउ कैन यू डिफाइन करंट? करंट कैन बी डिफाइंड एज when flow of charges in one direction per unit time is known as current. Okay, but then sir why it is known as electric current? electric मतलब कुछ याद आ रहा है? ये वर्ड कुछ क्या? इलेक्ट्रॉन. So इसका मतलब whenever somebody is saying what do you mean by current electricity? Flow of electrons from one place to another या from one direction to another per unit time can be defined as electric current. and उसका symbol क्या होता है? I. symbol होता है I, unit होती है एम्पियर, यूनिट का symbol होता है A. चार्ज symbol होता है Q, आप स्मॉल q से भी शो कर सकते हो. यूनिट होती है कूलम्ब और उसका सिंबल होता है C. टाइम आप स्मॉल t कैपिटल T इससे मन में आए शो कर सकते हो. टाइम की यूनिट होती है सेकेंड्स, आमतौर पे आप शो करते हो विद द स्मॉल लेटर S से. ध्यान रखना
ये कभी कभी कई लोग ऐसे लिख देते हैं SECS. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. दिस इज नॉट अलाउड. ओके, सो ऑलवेज राइट SCA लाइक दिस. ओके, सो I शुड बी इक्वल टू Q अपॉन T. तो इतना तो मालूम पड़ गया कि जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर, देन हम उसे क्या बोलते हैं? इट विल बी नोन एज करंट. ओके, अनदर लॉ which is known as, आज का सेकेंड टॉपिक, which is known as क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. What do you mean by quantization of charge? Or what is this law known as quantization? Now guys, यहाँ से जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, trust me, it is going to take your, change your life, not take your life, change your life. आप बोलोगे क्या? ऐसा क्या है इसमें? Quantization means that charges, technically charges, कभी भी पूरे टाइम चलते नहीं रहते. वो ग्रुप्स में या गुच्छे में या पैकेट्स के अंदर चलते हैं. And this is known as quantization of charge. मतलब पहले चार्ज का एक पैकेट जाएगा, फिर उसके पीछे एक और, फिर उसके पीछे एक और, फिर उसके पीछे एक और. कंटिन्यूसली नहीं चलते रहते चार्जेस. ओके, कि लगातार सारे के सारे चले जा रहे हैं. सो चार्जेस, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? चार्जेस विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन एन इंटीग्रल पैकेट फॉर्म और इन एन इंटीग्रल नंबर. मतलब आप चार्ज को कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते हो, मेरे को जरा 0.5 चार्ज देना, 0.2 चार्ज देना, 7/3 चार्जेस देना. चार्ज विल ऑलवेज बी इन होल नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5 and so on and so forth. So you cannot have 0.7 charge. So quantization of charge means that charges always exist. तो यहाँ पर लिख देता हूँ, quantization of charge means charges always exist in an integral manner. Integral packets बोल सकते हो, manner बोल सकते हो, anything at all guys, whatever you feel like. Okay, और इसी लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है Q should be equals to N into E. Now what do you mean by Q? That you know. Q means charge, unit is coulomb, symbol is C. Q का मतलब ये होता है चार्ज, चार्ज के लिए सिंबल यूज करते हैं Q. What is N? N stands for number of electrons. कितने इलेक्ट्रॉन्स के पैकेट्स जा रहे हैं उसमें. एंड E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. I know, थोड़ी सी टफ है. E equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. यदि ये इलेक्ट्रॉन है तो बाहर एक नेगेटिव साइन डाल देना, यदि एक प्रोटॉन है तो बाहर पॉजिटिव साइन डाल देना. ओके सर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज रहता है? ऑफ कोर्स यस. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमेशा रहता है नेगेटिव और प्रोटॉन पे चार्ज हमेशा रहता है पॉजिटिव. दैट्स सो सिंपल. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट देख लिया, हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देख लिया. इसी फॉर्मूले को यदि मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, याद है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो यू हैव गॉट नाउ अ न्यू फॉर्मूला व्हिच विल बी नोन एज NE/T. NE/T. अब किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ मेनी चार्जेस, are there in 1 coulomb. एक कुलम में कितने चार्जेस होते हैं? मुझे क्या मालूम. लेट्स राइट, Q should be equals to N into E. सो Q की जगह पर क्या लिखोगे? 1 कुलम, क्योंकि Q ही तो होती है यूनिट. 1 कुलम. N हमें निकालना है और E की वैल्यू कितनी है? 1.6 into 10 to the power minus 19. सो अब N निकालते हैं. सो N should be equals to 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19. Now guys, very very important part is, जब भी कभी ऐसे वाले कैलकुलेशन आते हैं घबराना मत. सिंपल 2 शॉर्टकट ट्रिक्स.
10 to the power minus 19 नीचे है डिनोमिनेटर में, so you have to take this 10 to the power minus 19 to the numerator and it will become what? 10 to the power 19. अब बचा क्या आपके पास में? 1 upon 1.6. 1 upon 1.6 into 10 to the power 19 should be equals to n. सर अब सर इतना डेसिमल वाला पार्ट कौन करेगा? बोला ना, घबराने की जरूरत नहीं। डेसिमल को हटाओगे, ऊपर एक पॉइंट आ जाए, मतलब एक नंबर 0 आ जाएगा। देन कम्स 2 8 16, 2 5 10, ओरली डिवाइड कर दो और n शुड बी इक्वल्स टू 8 के टेबल में 5 आता ही नहीं है, 5 के आगे एक 0 लगा दो, 50। 8 के टेबल में अब ये जो 0 लगाया है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। 8 6 48, 2 20, 8 2 16, 4 रिमाइंडर 40, 8 5 40 into 10 to the power 19। बट सर ये 10 की पावर 19.625, लेट्स राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब? एक के बाद में डेसिमल लगाते हैं, सो इट विल बी 6.25। डेसिमल विल गेट शिफ्टेड ओवर हियर। यदि मैंने डेसिमल को यहाँ शिफ्ट किया तो इसकी एक पावर कम कर देना, सो 10 टू द पावर 19 है तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 18। यदि वहां -19 होता तो मैं क्या करता? -20, एक कम करना होता है। ओके, सो ये आ गया। सो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.25 into 10 to the power 18 will be constituting 1 coulomb of charge। तो कभी किसी ने बोला 2 coulomb of charges, सो ध्यान रखना गाइस, coulomb of charge बहुत छोटी यूनिट नहीं होती है, बहुत बड़ी यूनिट होती है। ओके, नाउ सर इसकी यूनिट कहाँ है? आपको लगता है इसकी यूनिट आएगी? नंबर की यूनिट होती ही नहीं है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। सो आज अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? व्हाट डू यू मीन बाय करंट? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, और फ्लो करंट इज करंट कैन बी डिफाइंड एज द flow of electrons from one place to another in a given unit time. What is the unit of current? I. What is the formula? I should be equals to Q upon T. What is Q? It's charge. Charges can be positive or negative. T is time in seconds. Q की यूनिट होती है कूलम, कूलम का सिंबल होता है C, करंट का होता है I, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, उसका सिंबल होता है A, टाइम इज टाइम, इट इज इन सेकेंड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ में। कैन आई रब दिस? ऑफ कोर्स आई विल। ओके, नाउ सो लेट्स रब दिस। Now let's try to understand first of all that whether you guys do some work or not. आप कुछ काम वाम करते हो घर में या नहीं करते हो? आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो काम करते ही होगे। क्वेश्चन अब आने वाला है, आप यदि ये काम करते हो तो क्या आप मन से काम करते हो? हाँ सर हम मन से काम करते हैं। नो नो, What I mean to say is, यदि वो काम आपको नहीं बोला जाए तो भी क्या आप वो काम करते हो? सर मे बी मे नॉट बी। एग्जैक्टली, इसी को बोलते हैं वर्क। वर्क, हाँ। कैसे? जब भी सपोज करो मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट को यहां से उठा करके इस जगह पर लेके जाना है, इसका मन नहीं है, अगेंस्ट इसकी इच्छा के, तो मुझे कितनी बाय द वे फोर्स लगानी पड़ रही है या मुझे कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? दैट द वर्क डन टू व्हाट? टू मूव अ पॉइंट और टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी एक चार्ज को कहीं और जगह से इस जगह पर लेके आने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सब लोगों को मालूम होगा दैट एल्टीट्यूड्स, माउंटेन्स काफ़ी हाई एल्टीट्यूड्स पर मतलब होते हैं, मतलब आपको ज़मीन से यदि आप कंपेयर करोगे तो काफ़ी ऊंचे होते हैं। नाउ द रिवर्स विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कभी कभी अंडरग्राउंड स्प्रिंग से भी होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज व्हाई डू दीज रिवर्स फ्लो? आखिर ये रिवर्स फ्लो क्यों करते हैं? थिंक अबाउट इट। चुपचाप वहाँ पर भी तो बैठ सकती है, पानी इकट्ठा होता जाएगा धीरे 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 धीरे, फिर ये रिवर क्यों बनती रहती है?
रिवर इसलिए बनती है बिकॉज जिस जगह पर वो पानी निकल रहा है ड्यू टू एनी सोर्स, इट कैन बी एन अंडरग्राउंड बोरवेल, इट कैन बी एन अंडरग्राउंड बाय द वे स्प्रिंग, इट कैन बी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, इट कैन बी एनीथिंग। ये हमेशा पानी कहां से कहां जा रहा होता है? फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। सो इसका मतलब रिवर्स विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप ऑफ द माउंटेन टू द बॉटम। अब अनदर क्वेश्चन, सपोज कर लो वी आर राइट नाउ एट वन ऑफ द हिल स्टेशन, से लोनावला, खंडाला, ओके। यदि मुझे यहां से पानी को गिराना होगा तो ये पानी कहां जाएगा? टुवर्ड्स मुंबई और टुवर्ड्स लोनावला? कॉमन सेंस, इट विल गो टुवर्ड्स मुंबई। नाउ द क्वेश्चन इज सर व्हाई? बिकॉज मुंबई के पास में क्या है? सी। मुंबई इज एग्जैक्टली एट द सी लेवल। सी लेवल मतलब जो पानी का जो लेवल है सी पर, दैट इज नोन एज सी लेवल। और जितनी भी चीजें उससे ऊपर 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 होती जाती हैं, दैट इज नोन एज हाइट अबव द सी लेवल। वेरी सिंपल। आप जब भी कभी रेलवे स्टेशन के साइड में जाते हो एंड इफ यू सी दोज टू ब्लॉक्स, वहां पर लिखा हुआ रहता है हाइट अबव द सी लेवल, तो आप समझ जाना ये बता रहे हैं कि मुंबई से ये जगह कितनी ऊंची है, या जिस भी जगह पर सी है उस जगह से जगह कितनी ऊंची है। बट इसका सर मतलब इससे क्या कनेक्टेड है? इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी मैंने आपको बोला चीजें फ्लो कर रही हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर, बट देन द क्वेश्चन कम्स, सर चार्जेस आखिर फ्लो कर ही क्यों रहे हैं? उनको किसी ने पैसे दिए हैं क्या? जॉब पर जाना है, खाना नहीं मिलेगा, आखिर वो चार्जेस क्यों फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर? इसका मतलब है कहीं पर ज्यादा फोर्स लगा होगा और कहीं पर कम, and that is the reason why these particular charges are going to go from a region of higher potential to a region of lower potential. But then what do you mean by the word potential? Potential means the work done to bring a positive charge or to bring a charge from infinity to that point. So let's write the definition of potential. It can be defined as the work done to bring a charge from infinity to that point. What do you mean by infinity? Infinity is something infinity, not defined, जो इतना ह्यूज है जो कभी आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, like that. So what do you mean by potential? तो मैंने जब आपको बोला कि चार्जेस फ्लो करते हैं, the first question should have been, सर चार्जेस फ्लो क्यों करते हैं? चार्जेस फ्लो इसलिए करते हैं बिकॉज एक जगह पर हायर डिस्टर्बेंस लेवल है और यहाँ पर कम डिस्टर्बेंस है और वो लोग यहाँ से यहाँ पर फ्लो करना चालू कर देते हैं because they also want to become stable. Why do you think you guys are actually studying? आप लोग क्यों पढ़ रहे हो? To gain knowledge, of course yes. To have better jobs, of course yes. To get better degrees, of course yes. To go for good schools and so on and so forth. जो भी आपके reasons हैं. Actually में यदि तो सही आंसर होना चाहिए इसका, आप stability की तरफ में जा रहे हो. Sir stability, think about it. अभी आप ज़्यादा volatile हो. अब क्या होगा यदि अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, कॉलेज नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यदि आपने अच्छी ढंग से पढ़ाई कर लिया तो इसका मतलब है अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे कॉलेजेस के डोर्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे एंड व्हेन यू आर गोइंग टू गो ओवर देयर, आपको मालूम है कि आपके जॉब्स, बिजनेसेस ज़्यादा बेटर ढंग से स्टैब्लिश हो सकते हैं या लग सकते हैं। So, इसका मतलब क्या कर रहे हो? You are technically trying to do what? You are technically trying to move from a higher region of disturbance to a lower region of disturbance. हर बंदा यही कोशिश कर रहा होता है कि मैं लोअर रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस की तरफ में जाऊं। So, जिस ढंग से water from the hills come towards the sea, from higher region towards the lower region, potential का मतलब हो गया चार्ज भी from higher region of potential to lower region of potential की तरफ में हमेशा मूव करते हैं। And this property is known as potential difference. Potential difference. So what is potential difference? Whenever they are moving, whenever charges
are moving, hold on, marker ink, whenever charges are moving from a region of higher potential to lower potential. It's that simple, guys. So very simple, guys. आप हमेशा कोशिश क्या करते हो कि आप ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ में जाओ। जिस भी चीज में ज्यादा श्योरिटी होती है, आपके पेरेंट्स ने आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर क्यों डाला? दैट्स ओनली बिकॉज दे नो कि यदि बच्चे को इंग्लिश अच्छे ढंग से आ जाएगी या वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में रहेगा तो आई एम श्योर कि वो बच्चा ग्लोबली एक्सेप्टेड होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी जॉब कहीं पर भी लग सकते हैं। सी आजकल आप उस तरह के कैंडिडेट्स तो नहीं हो कि आप बस केवल एक ही स्टेट के एक ही एरिया में काम करना चाहोगे। सम ऑफ यू माइट गो टू कनाडा, सम ऑफ यू माइट गो टू ऑस्ट्रेलिया, सम ऑफ यू माइट गो टू यूएस, सम ऑफ यू माइट वर्क इन इंडिया, यू नेवर नो। So that's the reason why you are trying to learn that particular language which is acceptable by all. So in simple word, what do you mean by potential? It is defined as the work done to bring a charge from infinity to that point. Potential difference, when charges are moving from a region of higher potential to the lower potential, then it is known as potential difference. और इसी का एक और definition भी हो सकता है, when work done to move a charge, work done to move a charge from a region of higher potential to lower potential. That can be also the definition. या आप यदि कुछ मन से अच्छा बना सकते हो तो भी आप बना करके लिख दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ऑलवेज रिमेंबर मैथमेटिक्स एंड साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ है आपको वही लिखना है। यू कैन मेक अ डेफिनेशन ऑफ योर ओन एंड आई एम श्योर दैट योर रेस्पेक्टिव टीचर वुड गिव यू मार्क्स फॉर दैट, प्रोवाइडेड यू आर गोइंग टू राइट इट इन अ बेटर फॉर्मेट। ऑफ कोर्स अब आप इतने अच्छे ढंग की राइटिंग लिखोगे कि किसी को समझ में ही ना आए तो वो एक बात एक अलग है। ओके, खैर, so issue is then sir, what is the difference between potential and difference? It is because of potential that current actually starts up. यदि potential नहीं होगा तो charges flow ही नहीं करेंगे। So what technically is potential? Potential is that particular force because of which electrons move in one direction. Imagine करो आपका एक स्कूल है और आप उस स्कूल के अंदर आप लोग सब रैंडमली शोर मचा रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन टीचर आ गए या टीचर आ गई। यदि वो टीचर वहां पर आ गई, अब क्या होगा? यू ऑल आर गोइंग टू सिट एट योर यूनिक प्लेसेस, बैग्स बाहर निकलाएंगे, बुक्स निकलाएंगे एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन परफेक्ट ऑर्डर। थिंक अबाउट इट, जरा बैकवर्ड जाओ, सोचो क्या हुआ। कौन है पोटेंशियल यहाँ पर? द टीचर। शी इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल हु इज नाउ ट्राइंग टू मूव दिस रैंडमली ओरिएंटेड व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन, दैट इज ऑल। So actually में प्रोसेस होता कैसे है? Let us say suppose there is this wire, it's a metal wire and you know that metal wires are conductors. Okay, what do you mean by conductors? Something which can conduct electricity. What do you mean by opposite of conductors? It will be known as insulators, जो अपन बचपन में पढ़ते थे, bad conductors. Okay, now metal के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस, they are randomly arranged. एक चार्ज जा रहा है कुछ यहाँ, एक चार्ज जा रहा है यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक गाना गा रहा है लल्ला लल्ला, like this, like this. They're randomly oriented. All of a sudden, the teacher comes up. Now, what is a teacher? This teacher will be known as the electrical field. क्या potential? एक electrical field आया, चलो 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 सब जने। Now, this potential के वजह से ये जो electrons होंगे ये randomly एक direction में align हो जाएंगे and they will start moving in this direction. And this particular process is caused by what? Potential from higher region towards the lower region.
ऑलवेज रिमेंबर पोटेंशियल बहुत बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है एंड पोटेंशियल इज नॉट सिमिलर टू व्हाट करंट इज. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल की यूनिट होती है, आप उसको लिखोगे तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल से ही, बट द यूनिट इज वोल्ट. वोल्ट एज एन वोल्टेज वाला वोल्ट, एंड द सिंबल इज V. So what is the formula of V now? So V should be equals to, or potential difference PD should be equals to, इसको ऐसे लिख देता हूँ, that is work done upon charge, और WD नहीं लिखता, work लिख देता हूँ. So how can you define potential? Potential can be defined as the work done to carry a unit positive charge across the closed circuit. Very, very important definition. Potential can be defined as the work done to carry a unit positive charge across a closed circuit. So what is the unit of work? It can be joules. Charge, it can be coulomb. So what is the unit? Or joule per coulomb. So if somebody says what is 1 volt, it should be equals to joule per coulomb. So how can you define the definition of 1 volt? 1 volt can be defined as when 1 joule of work is required to carry 1 coulomb of charge across a circuit, and that's all. It is known as this. Okay, so we'll stop it today's lecture right over here, guys. Thank you so much for being so cooperative. Do write in the comment section that what's going in your school so that we can start the next chapter according to what you say, or else we'll continue with the same. Okay, see ya, enjoy and chill, guys. Thank you so much. Bye.